નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, બાલગોકુલમ શૈક્ષણિક સંકુલ વતી આપનું સ્વાગત છે। આજે આપણે ધોરણ 8 વિષય હિન્દી પાઠ 6 ભરત એનો ત્રીજો પાઠ અને આખર છેલ્લો સમજીશું। આપણે આગળ જોઈ ગયા ભરત છે, તપસ્વીની 1 અને 2, રાજા દુષ્યંત પોતાની સાથે જ વાત કરે છે। બાળક ભરત છે એ સિંહના બચ્ચાને કહે છે મારે તારા દાંત ગણવા છે। ભરતને જોઈને દુષ્યંતને એમ જ થાય છે આ કોક રાજાનો જ દીકરો હશે। પછી તપસ્વીની કહે છે ખરેખર રાજાનો જ દીકરો છે। રાજા વર્તી જાય છે કદાચ આની માં મારી શકુંતલા તો નથી। તો એ બધું જોઈને રાજાને ખબર જ પડી જાય છે આ કદાચ મારો જ દીકરો છે। તે દુષ્યંત એને સમજાવે છે અને એ સિંહના બાળને છોડી દે છે। આપણે પેજ નંબર 37 ઉપર જોયું તો આપણે ફરીથી જોઈએ અને આપણો આજનો આ પાઠ પૂરો કરીએ। રાજાએ કીધું કે આ જો તપ ઋષિકુમાર નથી તો આ કોનો વંશ છે? તો કે પુરુ વંશ છે। જુઓ પેજ નંબર 38 ઉપર દૂસરી તપસ્વીની આપણે ત્યાં સુધી જોયું હતું કે આ દેવતાઓ જેવી શક્તિવાળો છે, આ નિડર અને અસાધારણ બાળક એ મનુષ્યનો પુત્ર કેવી રીતે હોઈ શકે? દૂસરી તપસ્વીની हे परदेसी, तेरा यह संदेह तब मिट जाएगा जब तू जान लेगा कि इस बालक की माँ मेनका नामक एक अप्सरा की बेटी है। उसी के प्रताप से इसका जन्म देव पितर के इस तपोवन में हुआ। શું કીધું કે તારો શંકા ત્યારે મટી જશે જ્યારે તને ખબર પડશે કે એની માં છે એ મેનકા નામની અપ્સરાની દીકરી છે। એના પ્રતાપથી જ આનો જન્મ અહીંયા તપોવનમાં થયો છે। મનમાં एनाथी नहीं आशा वही એટલે કે यह तो बड़े आनंद की बात सुनाई, इससे कुछ और आशा बढ़ी। इसकी माता किस राजर्षि की पत्नी है? दूसरी तपस्विनी जिस राजा ने अपनी विवाहिता स्त्री को बिना अपराध छोड़ दिया है उसका नाम मैं न लूंगी। दुष्यंत स्वयं से यह कथा तो मुझ पर लगती है, भला इस बालक की माँ का नाम पूछूं? ये जे राजाए પોતાની પરણેલી સ્ત્રીને કાંઈ અપરાધ વગર છોડી દીધી હોય એવા રાજનું નામ હું લઈશ નહીં। રાજા કે આ વાત તો મને જ લાગુ પડે છે, હું પૂછું એનું નામ? ત્યાં બીજી તપસ્વીની છે એ માટીનો મોર લઈ આવે છે। પહેલી તપસ્વીની કહે છે હે સર્વદમન ય શાકુંત લાવણ્ય દેખ બાલક कहाँ है शकुंतला? शाकुंत એટલે શકુંતલા, શાકુંત એટલે આમ તો મોર થાય પણ એ કે મારી માં ક્યાં છે? એને એમ થયું એ માટીના મોરને જોવે છે કે આને રાજાને એમ થાય છે આ મારી જ શકુંતલા છે કે બીજી કોઈ હશે। તો આપણે જોઈએ આગળ पहली तपस्विनी घबरा कर बालक की माँ से रक्षाबंधन कहाँ गया? दुष्यंत घबराओ मत, जब यह नाहर से खेल रहा था तब इसके हाथ से गिर गया था, सो वह पड़ा है, मैं उठाकर तुम्हें दिए देता हूँ। पहली तपस्विनी के आनो બાળકને હાથમાં જે રક્ષાબંધન એટલે કે રક્ષાની પોટલી બાંધી હતી એ ક્યાં ગઈ? દુષ્યંત કહે છે ગભરાવો મત, એ જ્યારે ઓલા સિંહના બાળક સાથે ખેલતો હતો રમતો હતો ત્યારે એના હાથથી પડી ગયું અને એ ચોરીમાં પડ્યું છે, હું તને દઉં છું। પહેલી તપસ્વીની કહે છે અરે અરે મત ઉઠાઓ, इसे मत छूना। પહેલી તપસ્વીની કહે છે અરે એને ન ઉઠાવ, એને અડતો નહીં। दूसरी तपस्विनी इसने तो उठा ही लिया, अरे आने तो उठा भी लीधु। दोनों एक दूसरे को आश्चर्य से देखती है। दुष्यंत यह लो, परंतु कहो कि तुमने मुझे इससे उठाने से क्यों रोका था? બે એકબીજાને આશ્ચર્યથી જુએ છે કારણ કે ઓલા રાજાએ રક્ષાબંધન ઉઠાવ્યું તો પણ કાંઈ થયું નહીં એટલા માટે દુષ્યંત કહે છે આ લ્યો પણ તમે મને આને ઉઠાવવાથી કેમ રોક્યો તો? दूसरी तपस्विनी કહે છે कि रक्षाबंधन का नाम अपराजित है। जिस समय इस बालक का नामकरण हुआ था तब महात्मा मरीचि के पुत्र कश्यप ने यह धागा दिया था। इसका गुण है कभी यह धरती पर गिर पड़े तो इस बालक के माता पिता को छोड़कर इसे कोई दूसरा न उठा सके। कि આ જે રક્ષાબંધન છે રક્ષાની પોટલી એનું નામ અપરાજિત છે અને જ્યારે આ બાળકનું નામકરણ થયું ત્યારે મહાત્મા મરીચિના પુત્ર કશ્યપે આ દોરો આપ્યો હતો। એનો ગુણ છે જ્યારે ધરતી ઉપર પડે ત્યારે એના માતા પિતા સિવાય બીજું કોઈ એને ઉઠાવી ન શકે।
दुष्यंत और जो कोई उठा ले तो क्या हो? जो कोई उठा भी लिए तो? पहली तपस्विनी कहे छे यह तुरंत सांप बनकर उसे डसता है। तुमने कभी ऐसा होते देखा है? अनेक बार। दुष्यंत कहे छे जो कोई उठा भी लिए तो कहे छे के આ જે રક્ષાબંધન છે એ એને સાપ બનીને એને ડંખ મારે છે કે આવું તે જોયું છે? તો તપસ્વીની કહે છે કેટલી વાર? તો દુષ્યંત રાજા પ્રસન્ન થાય છે કારણ કે ઈ સાપ બનીને એને ડસ્યું નહીં એટલે એને ખબર પડી ગઈ આ મારો જ દીકરો છે। तो अब मेरा मनोरथ पूरा हुआ, मैं क्यों ना आनंद मनाऊं? बालक को गोद में ले लेता है दुष्यंत કે હવે તો મારો આ મનોરથ પૂરો થયો, હું શા માટે આનંદ ન મનાવું? ને બાળકને પોતાના ખોળામાં લઈ લે છે અને આ નાટકના સ્વરૂપમાં છે એટલે પડદા ઘેરતા હે પડદો પડે છે। તો વિદ્યાર્થી મિત્રો આપણો આ પાઠ અહીંયા આપણે પૂર્ણ કરીએ છીએ। ચાલો આ પાઠ આપણે એનિમેશન સ્વરૂપમાં જોઈએ। આશા છે કે તમને ગમશે। परिचय। नाम राजा लक्ष्मण सिंह, जन्मस्थान आगरा, जन्मतिथि 1926, हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, फारसी, बंगला और अरबी भाषाओं के ज्ञाता, अभिज्ञान शाकुंतल, मेघदूत, रघुवंश के हिंदी अनुवाद के लिए पुरस्कार मिला था। अरे सिंह, तू अपना मुख खोल, मैं तेरे दांत गिनूंगा। ए हठीले बालक, तू वन के इन पशुओं को क्यों सताता है? हम तो इन पशुओं को बाल बच्चों के समान रखती हैं। तेरा साहस बढ़ता ही जाता है। तेरा नाम ऋषियों ने सर्वदमन रखा है, सो ठीक ही है। क्या कारण है कि मेरा स्नेह इस बालक की ओर उमड़ा सा आता है? जो तू इस बच्चे को छोड़ न देगा तो सिंहनी तुझ पर दौड़ेगी। ठीक है, सिंहनी का मुझे ऐसा ही डर है। यह बालक अवश्य किसी तेजस्वी वीर का पुत्र है। इसका मुख अग्नि के समान दमक रहा है। हे प्यारे बालक, सिंह के बच्चे को छोड़ दे, मैं तुझे खिलौना दूंगी। पहले खिलौना दे दो, लाओ, कहाँ है? इसके हाथ में चक्रवर्तियों के लक्षण है। अंगुलियों पर कैसा अद्भुत जाल है और हथेली की शोभा प्रातः कमल को भी लज्जित कर रही है। हे सखी सुव्रता, यह बातों से न मानेगा। जा, मेरी कुटिया में ऋषि कुमार के खेलने के लिए मिट्टी का मोर रखा है, उसे ले आ। मैं अभी लिए आती हूँ। तब तक मैं इसी सिंह के बच्चे के साथ खेलूंगा। इस सुंदर बालक से खेलने को मेरा मन कैसा ललचाता है। धन्य है वे मनुष्य जो अपने पुत्रों को गोद में लेकर उनके अंग की धूलि से अपनी गोद मैली करते हैं और पुत्रों के मुख अकारण हंसी से खुलकर उज्जवल दांतों की शोभा दिखाते और तुतले वचन बोलते हैं। क्यों रे ढीठ, तू मेरी बात कान नहीं धरता? कोई ऋषि कुमार यहाँ है? हे महात्मा, तुम ही आओ और कृपा करके इस बलि बालक के हाथ से सिंह के बच्चे को छुड़ाओ। अच्छा, हे ऋषि कुमार, तुमने तपोवन के विरुद्ध यह आचरण क्यों सीखा है जिससे तुम्हारे कुल की लाज जाती है? यह तो कोई अच्छी बात नहीं। हे बड़भागी, यह ऋषि कुमार नहीं है। सत्य है, उसके काम ही ऐसे साहस के हैं, यह ऋषि कुमार नहीं जान पड़ता। परंतु मैंने तपोवन में वास देख इसे ऋषिपुत्र जाना था। आहा, जब इसका हाथ छूने से मुझे इतना सुख हुआ है तो जिस बड़भागी का यह बेटा है उसे कितना हर्ष होता होगा। बड़े अचंभे की बात है। तुम्हें क्यों अचंभा हुआ? इसलिए हुआ कि इस बालक की और तुम्हारी सूरत बहुत मिलती है और तुम्हें जाने बिना भी इसने तुम्हारी बात मान ली। हे तपस्विनी, जो यह ऋषि कुमार नहीं है तो किस वंश का है? यह पुरुवंशी है। इसीलिए इसकी सूरत मुझसे मिलती है। पुरुवंशियों में यह रीति तो निश्चित है कि युवा अवस्था में वे महलों में रहकर पृथ्वी की रक्षा और पालन करते हैं और वृद्धावस्था आने पर
वन में जितेंद्रिय तपस्वियों के आश्रम में वृक्षों के नीचे कुटी बनाकर रहते हैं। देवता जैसी शक्ति वाला यह निडर और असाधारण बालक मनुष्य का पुत्र भला किस प्रकार होगा? हे परदेशी, तेरा यह संदेह तब मिट जाएगा जब तू जान लेगा कि इस बालक की माँ मेनका नामक एक अप्सरा की बेटी है। उसी के प्रताप से इसका जन्म देव पितर के इस तपोवन में हुआ। यह तो बड़े आनंद की बात सुनाई। इससे कुछ और आशा बढ़ी। इसकी माता किस राजर्षि की पत्नी है? जिस राजा ने अपनी विवाहिता स्त्री को बिना अपराध छोड़ दिया है, उसका नाम मैं ना लूंगी। यह कथा तो मुझ पर लगती है। भला अब इस बालक की माँ का नाम पूछो। हे सर्वदमन, यह शकुंत लावण्य देख। कहाँ है शकुंतला, मेरी माता? यहाँ तेरी माता नहीं है। तुम इस नाम से धोखा खा गए सर्वदमन। मैंने तो कहा था मिट्टी के मोर को देख। इसकी माँ मेरी ही प्यारी शकुंतला है या इस नाम की कोई दूसरी स्त्री है? यह वृतांत मुझे ऐसे व्याकुल करता है जैसे मृग तृष्णा प्यासे हिरन को व्याकुल करती है। मुझे यह मोर बहुत अच्छा लगता है। ओह, बालक की बात से रक्षाबंधन कहाँ गया? घबराओ मत। जब यह नहर से खेल रहा था तब इसके हाथ से गिर गया था, सो वह पड़ा। मैं उठाकर तुम्हें दिए देता हूँ। अरे अरे, मत उठाओ, इसे मत छूना। ओह, इसने तो उठा ही लिया। यह लो। परंतु यह कहो कि तुमने मुझे इसको उठाने से रोका क्यों था? इस रक्षाबंधन का नाम अपराजित है। जिस समय इस बालक का नामकरण हुआ था तब महात्मा मरीचि के पुत्र कश्यप ने यह धागा दिया था। इसका गुण है कि कभी यह धरती पर गिर पड़े तो इस बालक के माता पिता को छोड़कर इसे कोई दूसरा ना उठा सके। और जो कोई उठा ले तो क्या हो? तो यह तुरंत सांप बनकर उसे डसता है। तुमने कभी ऐसा होते देखा है? अनेक बार। तो अब मेरा मनोरथ पूरा हुआ। मैं क्यों ना आनंद मनाऊं।